انم کو پولیس کیوں پکڑ کے لے گئی؟ انم کی تائی امی جو کہ نوید کی ماں ہے، اگر اس کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا پیسوں کے لیے تو وہ ان کو پیسے سود پر دیتی۔ اسی طرح ایک عورت نے اپنے زیورات شگفتہ کو دیے، شگفتہ نے پیسے تو دے دیے اور زیورات اپنے پاس رکھ لیے۔ عورت آتی ہے اپنے زیورات لینے، شگفتوں سے نہیں دیتی، اسے سود پر پیسے لیتی ہے۔ کیا شاکر انم کی نوید سے شادی کرائے گا؟ انم ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ انم ایک غریب گھر کی لڑکی ہے اور اس کی دوستیں امیر باپ کی بیٹیاں ہیں۔ تو انم نے اسے جھوٹ بولا ہوا ہے کہ میرا باپ بھی ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہیں، لیکن انم کی دوستوں کو پتہ نہیں کہ یہ غریب لڑکی ہے۔ جب انم کی برتھ ڈے تھی تو ان کی دوستوں نے خوب انجوائمنٹ کے ساتھ اس کی سالگرہ سیلیبریٹ کی اور انم کو مہنگے مہنگے تحفے تحائف دیے، جس پر انم بہت خوش تھی۔ انم کا باپ شاکر ایک چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے اور اس کی ماں گھر میں کپڑے سلائی کرتی ہے، جس سے ان کے گھر کا مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ انم کی بہن مام نے اپنی ماں کو کہا کہ آج انم آپی کا سالگرہ ہے، اس کے لیے کیک بناتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ چھوڑو فضول خرچیاں، لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ نہیں، کس برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ تو اس کی بہن کیک وغیرہ لے آتی ہے۔ انم یونیورسٹی سے گھر آتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے دوستوں نے اسے تحفے تحائف دیے۔ جب اس کی بہن کہتی ہے کہ کپڑے چینج کر کے آ جاؤ، ہم آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے تو اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے بھی کیک بنایا ہوا ہے۔ تو انم کہتی ہے کہ چھوٹے کے کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتی ہے تو اس کی بہن انم کو منا لیتی ہے اور پھر اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں ہیرو فراز جو کہ گاؤں میں رہتا ہے، جاب کے لیے شہر آ جاتا ہے، وہ بھی انم کے محلے میں کرایہ کا گھر لے لیتا ہے، جبکہ اس کی ماں گاؤں میں رہتی ہے۔ جب انم یونیورسٹی کے لیے جا رہی ہوتی ہے اور فراز بھی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے تو انم فراز کو بائک پر جا لگتی ہے، اس پر وہ بہت غصہ ہو جاتی ہے، اس سے لڑنے لگتی ہے۔ فراز کہتا ہے کہ قصور آپ کی ہے، آپ دیکھ کر چلیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ قصور آپ کی ہے۔ اس بات پر اس دونوں کی بحث ہو جاتی ہے۔ تو پھر ادھر سے نوید آ جاتا ہے جو کہ انم کا کزن ہے۔ پہلے تو وہ بہت ہیرو کے سٹائل میں آتا ہے، اب فراز کو کہتا ہے کہ کیوں چھیڑ رہے ہو لڑکیوں کو؟ تو فراز کہتا ہے کہ او بھائی، پہلے بات کی تحقیق کر لو۔ تو انم نوید کو کہتی ہے کہ تم کہاں آ گئے، اپنے کام سے کام رکھو۔ نوید انم کا کزن ہوتا ہے اور انم سے محبت کرتا ہے۔ نوید کی ماں شاکر کے گھر آتی ہے انم کا رشتہ لینے۔ جیسے ہی شاکر اسے دیکھتا ہے اس پر غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ بہت ہی پیار سے بات کرتی ہے لیکن شاکر غصہ آ جاتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر نوید کی ماں شگفتہ چلی جاتی ہے۔ جب گھر جاتی ہے تو اپنے بیٹے کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شاکر مجھے بہت باتیں سنائی اور اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ نوید اپنے چچا کے گھر آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ تم نے کیا کہ اس کا بی پی اتنا ہائی ہو گیا ہے، وہ تو انم کا رشتہ لینے آئی تھی میرے لیے۔ شاکر اسے کہتا ہے کہ اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا نام نہ لو، میں تم جیسے لوگوں کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ تو نوید شاکر کو کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ شاکر اسے کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے۔ نوید بھی چلا جاتا ہے۔ نوید جب اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے شاکر کو ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ نوید کی ماں شگفتہ جب ان سے کوئی غریب پیسے لینا آتا ضرورت مند تو اسے پیسے تو دے دیتی لیکن اس پر سود لگا دیتی، لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ ہوتا۔ رات ہوتی تو نوید کی ماں شگفتہ ڈرتی، ہر رات وہ ایک ڈراؤنا خواب دیکھتی جس سے وہ بہت ڈر جاتی تھی۔ اس کا بیٹا نوید آ جاتا تھا۔ انم کی دوست امبر جو کہ ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی اور بار بار انم کے پاس آ جاتی تھی، مجھے اس لڑکے سے ملا دو، صرف تم یہ کام کر سکتی ہو کیونکہ میرے ماں باپ تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انم اسے کہتی کہ یہ میں نہیں کر سکتی۔ وہ ہر جگہ انم کے پیچھے آ جاتی، ان کے گھر آ جاتی اور یونیورسٹی میں بھی اس کا پیچھا کرتی۔ یونیورسٹی میں بھی بار بار اس کے پاس چلی جاتی اور اسے یہ کہتی۔ جب انم کی دوست نیہا کا سالگرہ ہوتا ہے تو سب دوستوں نے اس کے لیے مہنگے مہنگے تحفے لیے، لیکن انم بھی ایک مہنگا تحفہ اس کے لیے لینا چاہتی تھی۔ جب اس کے باپ کو تنخواہ ملی تو اس کی ماں پیسے اٹھائی بیٹھی ہوتی ہے۔ انم جیسے یونیورسٹی سے آتی ہے دیکھتی ہے کہ اس کی ماں نے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ اپنی ماں سے پیسے کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری دوست کے برتھ ڈے ہے، اس کے لیے میں کچھ لوں گی۔ تو اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے تو اس کی چھوٹی بہن کہتی ہے کہ میں ابھی سے لے آتی ہوں، اور اپنی بہن کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت کہ امیر دوستوں سے دوستی لگائی بیٹھی ہو، امی ابو بہت پریشان ہیں، یہ پیسے مجھے دے دو۔ تو انم نہیں دیتی تو وہ کھینچ کر لے آتی ہے۔ انم ناراض ہو جاتی ہے، کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا دیتی ہے۔ اس کا باپ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے اور پھر انم کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے دروازہ کھولو۔ تو انم نہیں کھولتی، کہتا ہے کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اب بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو انم دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، میں تمہارے لیے پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، میں کسی سے ادھار مانگ لوں گا۔
अनम का बाप दूसरे रोज़ ऑफिस में जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे 5-6 हज़ार ज़रूरत है, मैं आपको वापस कर दूंगा। मुझे मांगते हुए शर्म तो बहुत आ रही है क्योंकि आपको भी कल तनख्वाह मिले और मुझे भी। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आजकल ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, तो तनख्वाह पूरी नहीं होती। उसका दोस्त उसे पैसे दे देता है। जब अनम बैलेंस करवाने के लिए एक शॉप में जाती है तो फराज भी वहाँ ठहरा होता है। अनम दुकानदार को कहती है एक कार्ड दे दो, तो वो कहता है कि कार्ड तो नहीं है लेकिन बैलेंस है। अनम कहती है कि चलो ठीक है, हम अपना नंबर बताने लग जाती है। फराज भी साथ ठहरा होता है और उस अनम का नंबर नोट कर रहा होता है। अनम उसे देख लेती है और उसे कहती है कि तुम मेरा नंबर नोट कर रहे हो। फराज कहता है कि नहीं, देख लो, मैं किसी दोस्त को मैसेज कर रहा था। और फिर अनम चली जाती है, बाहर ठहर जाती है और रिक्शे वाले को कहती है कि जाना है। तो वो कहता है कि 1000 रुपये लूँगा। फराज भी पीछे से आ रहा होता है तो उसे कहता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप लेट हो रही होंगी। वो कहती है कि हरगिज़ नहीं। अनम को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? अनम की ताई अम्मी जो कि नवीद की माँ है, अगर उसके पास कोई ज़रूरतमंद आ जाता पैसों के लिए तो उनको पैसे सूद पर देती। इसी तरह एक औरत ने अपने जेवरात शगुफ्ता को दिए। शगुफ्ता ने पैसे तो दे दिए और जेवरात अपने पास रख लिए। औरत आती है अपने जेवरात लेने, शगुफ्ता से नहीं देती, उससे सूद पर पैसे लेती है। क्या शाकिर अनम की नवीद की शादी कराएगा? अनम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अनम एक गरीब घर की लड़की है और उसकी दोस्तें अमीर बाप की बेटियां हैं। तो अनम ने उसे झूठ बोला हुआ है कि मेरा बाप भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे पास भी गाड़ियां हैं। लेकिन अनम के दोस्तों को पता नहीं कि ये गरीब लड़की है। जब अनम की बर्थडे थी तो उनकी दोस्तों ने खूब इंजॉयमेंट के साथ उसकी सालगिरह सेलिब्रेट की और अनम को महंगे महंगे तोहफे तहफ़ दिए, जिस पर अनम बहुत खुश थी। अनम का बाप शाकिर एक छोटी मोटी जॉब करता है और उसकी माँ घर में कपड़े सिलाई करती है, जिससे उनके घर का मुश्किल से गुजारा होता था। अनम की बहन माम ने अपनी माँ को कहा कि आज अनम आपी का सालगिरह है, उसके लिए केक बनाते हैं। उसकी माँ कहती है कि छोड़ो फूल खर्चियाँ, लेकिन उसकी बहन कहती है कि नहीं, किस बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसकी बहन केक वगैरह ले आती है। अनम यूनिवर्सिटी से घर आती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे तोहफे तहफ़ दिए। जब उसकी बहन कहती है कि कपड़े चेंज करके आ जाओ, हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो कहती है कि मैंने तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली अपने दोस्तों के साथ। उसकी बहन कहती है कि हमने आपके लिए भी केक बनाया हुआ है। तो अनम कहती है कि छोटे से कोई बर्थडे सेलिब्रेट होती है तो उसकी बहन अनम को मना लेती है, फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस ड्रामे में हीरो फराज जो कि गांव में रहता है, जॉब के लिए शहर आ जाता है। वो भी अनम के मोहल्ले में किराए का घर ले लेता है, जबकि उसकी माँ गांव में रहती है। जब अनम यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है और फराज भी वहाँ से आ रहा होता है तो अनम फराज को बाइक पर जा लगती है। इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है, उससे लड़ने लगती है। फराज कहता है कि कसूर आपकी है, आप देख कर चलें, लेकिन वो कहती है कि कसूर आपकी है। इस बात पर इस दोनों की बहस हो जाती है। तो फिर उधर से नवीद आ जाता है जो कि अनम का कज़न है। पहले तो वो बहुत हीरो के स्टाइल में आता है और फराज को कहता है कि क्यों क्यों छेड़ रहे हो लड़कियों को। तो फराज कहता है कि ओ भाई, पहले बात की तहकीक कर लो। तो अनम नवीद को कहती है कि तुम कहाँ आ गए, अपने काम से काम रखो। नवीद अनम का कज़न होता है और अनम से मोहब्बत करता है। नवीद की माँ शाकिर के घर आती है अनम का रिश्ता लेने। जैसे ही शाकिर उसे देखता है उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। वो बहुत ही प्यार से बात करती है लेकिन शाकिर को गुस्सा आ जाता है और फिर उसको कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। फिर नवीद की माँ जो गुफ्तगू चली जाती है। जब घर जाती है तो अपने बेटे को बुलाती है और उसे कहती है कि शाकिर मुझे बहुत बातें सुनाई और उसका बीपी हाई हो जाता है। नवीद अपने चाचा के घर आता है, उसे कहता है कि मेरी माँ के साथ तुमने क्या किया कि उसका बीपी इतना हाई हो गया है, वो तो अनम का रिश्ता लेने आई थी मेरे लिए। शाकिर उसे कहता है कि अपनी गंदी ज़बान से मेरी बेटी का नाम ना लो, मैं तुम जैसे लोगों को अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। तो नवीद शाकिर को कहता है कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। शाकिर उसे कहता है कि जाओ जाओ निकलो यहाँ से। नवीद भी चला जाता है। नवीद जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ कहती है शाकिर को एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। नवीद की माँ शगुफ्ता जब उनसे कोई गरीब पैसे लेना आता ज़रूरतमंद तो उसे पैसे तो दे देती लेकिन उस पर सूद लगा देती, लेकिन उन गरीबों को पता ना होता। रात होती तो नवीद की माँ शगुफ्ता डरती। हर रात वो एक डरावना ख्वाब देखती जिससे वो बहुत डर जाती थी। उसका बेटा नवीद आ जाता था। अनम की दोस्त अंबर जो कि एक लड़के से मोहब्बत करती थी और बार बार अनम के पास आ जाती थी, मुझे उस लड़के से मिला दो, सिर्फ तुम ये काम कर सकती हो क्योंकि मेरे माँ बाप तुम पर भरोसा करते हैं। अनम उसे कहती कि ये मैं नहीं कर सकती। वो हर जगह अनम के पीछे आ जाती, उनके घर आ जाती और यूनिवर्सिटी में भी उसका पीछा करती। यूनिवर्सिटी में भी बार बार उसके पास चली जाती और उसे ये कहती। जब अनम की दोस्त नेहा का सालगिरह होता है तो सब दोस्तों ने उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लिए
लेकिन अनम भी एक महंगा तोहफा उसके लिए लेना चाहती थी। जब उसके बाप को तनख्वाह मिली तो उसकी माँ पैसे उठाई बैठी होती है। अनम जैसे यूनिवर्सिटी से आती है देखती है कि उसकी माँ ने पैसे उठाए हुए हैं तो वो अपनी माँ से पैसे खींच लेती है और कहती है कि मेरी दोस्त के बर्थडे है, उसके लिए मैं कुछ लूँगी। तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि मैं अभी से ले आती हूँ, और अपनी बहन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत कि अमीर दोस्तों से दोस्ती लगाई बैठी हो, अम्मी अब्बू बहुत परेशान है, ये पैसे मुझे दे दो। तो अनम नहीं देती तो वो खींच कर ले आती है। अनम नाराज़ हो जाती है, कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा देती है। उसका बाप बहुत ही परेशान हो जाता है, रोने लगता है। फिर अनम के पास जाता है, उसे कहता है दरवाज़ा खोलो। तो अनम नहीं खोलती, कहता है कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, अब भी खाना नहीं खाऊंगा। तो अनम दरवाज़ा खोल देती है। तो उसका बाप कहता है कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम करता हूं, मैं किसी से उधार मांग लूँगा। अनम का बाप दूसरे रोज़ ऑफिस में जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे 5-6 हज़ार ज़रूरत है, मैं आपको वापस कर दूँगा। मुझे मांगते हुए शर्म तो बहुत आ रही है क्योंकि आपको भी कल तनख्वाह मिले और मुझे भी। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आजकल ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, वो तनख्वाह पूरी नहीं होती। तो उसका दोस्त उसे पैसे दे देता है। जब अनम बैलेंस करवाने के लिए एक शॉप में जाती है तो फराज भी वहाँ ठहरा होता है। अनम दुकानदार को कहती है एक कार्ड दे दो। तो वो कहता है कि कार्ड तो नहीं है लेकिन बैलेंस है। तो अनम कहती है कि चलो ठीक है, वो अपना नंबर बताने लग जाती है। फराज भी साथ ठहरा होता है और उस अनम का नंबर नोट कर रहा होता है। अनम उसे देख लेती है और उसे कहती है कि तुम मेरा नंबर नोट कर रहे हो। फराज कहता है कि नहीं देख लो, मैं किसी दोस्त को मैसेज कर रहा था। और फिर अनम चली जाती है, बाहर ठहर जाती है और रिक्शे वाले को कहती है कि जाना है। तो वो कहता है कि 1000 रुपये लूँगा। फराज भी पीछे से आ रहा होता है तो उसे कहता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप लेट हो रही होंगी। वो कहती है कि हरगिज़ नहीं। अनम को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? अनम की ताई अम्मी जो कि नवीद की माँ है, अगर उसके पास कोई ज़रूरतमंद आ जाता पैसों के लिए तो उनको पैसे सूद पर देती। इसी तरह एक औरत ने अपने ज़ेवरात शगुफ्ता को दिए। शगुफ्ता ने पैसे तो दे दिए और ज़ेवरात अपने पास रख लिए। औरत आती है अपने ज़ेवरात लेने, जो गुफ्तों से नहीं देती, उससे सूद पर पैसे लेती है। क्या शाकिर अनम की नवीद की शादी कराएगा? अनम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अनम एक गरीब घर की लड़की है और उसकी दोस्तें अमीर बाप की बेटियां हैं। तो अनम ने उनसे झूठ बोला हुआ है कि मेरा बाप भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे पास भी गाड़ियां हैं। लेकिन अनम की दोस्तों को पता नहीं कि ये गरीब लड़की है। जब अनम की बर्थडे थी तो उनकी दोस्तों ने खूब इंजॉयमेंट के साथ उसकी सालगिरह सेलिब्रेट की और अनम को महंगे महंगे तोहफे तहफ़ दिए, जिस पर अनम बहुत खुश थी। अनम का बाप शाकिर एक छोटी मोटी जॉब करता है और उसकी माँ घर में कपड़े सिलाई करती है, जिससे उनके घर का मुश्किल से गुजारा होता था। अनम की बहन माम ने अपनी माँ को कहा कि आज अनम आप ही का सालगिरह है, उसके लिए केक बनाते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि छोड़ो फजूल खर्चियाँ, लेकिन उसकी बहन कहती है कि नहीं कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसकी बहन केक वगैरह ले आती है। अनम यूनिवर्सिटी से घर आती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे तोहफे तहफ़ दिए। जब उसकी बहन कहती है कि कपड़े चेंज करके आ जाओ, हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो कहती है कि मैंने तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली अपने दोस्तों के साथ। उसकी बहन कहती है कि हमने आपके लिए भी केक बनाया हुआ है। तो अनम कहती है कि छोटे के कोई बर्थडे सेलिब्रेट होती है तो उसकी बहन अनम को मना लेती है और फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस ड्रामे में हीरो फराज जो कि गांव में रहता है, जॉब के लिए शहर आ जाता है। वो भी अनम के मोहल्ले में किराए का घर ले लेता है, जबकि उसकी माँ गांव में रहती है। जब अनम यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है और फराज भी वहाँ से आ रहा होता है तो अनम फराज को बाइक पर जा लगती है। इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है, उससे लड़ने लगती है। फराज कहता है कि कसूर आपकी है, आप देख कर चलें, लेकिन वो कहती है कि कसूर आपकी है। इस बात पर इस दोनों की बहस हो जाती है। तो फिर उधर से नवीद आ जाता है जो कि अनम का कज़न है। पहले तो वो बहुत हीरो के स्टाइल में आता है और फराज को कहता है कि क्यों क्यों छेड़ रहे हो लड़कियों को। तो फराज कहता है कि ओ भाई पहले बात की तहकीक कर लो। तो अनम नवीद को कहती है कि तुम कहाँ आ गए, अपने काम से काम रखो। नवीद अनम का कज़न होता है और अनम से मोहब्बत करता है। नवीद की माँ शाकिर के घर आती है अनम का रिश्ता लेने। जैसे ही शाकिर उसे देखता है उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। वो बहुत ही प्यार से बात करती है लेकिन शाकिर गुस्सा आ जाता है और फिर उसको कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। फिर नवीद की माँ जब गुफ्तगू चली जाती है, जब घर जाती है तो अपने बेटे को बुलाती है और उसे कहती है कि शाकिर मुझे बहुत बातें सुनाई और उसका बीपी हाई हो जाता है। नवीद अपने चाचा घर आता है, उसे कहता है कि मेरी माँ के साथ तुमने क्या किया कि उसका बीपी इतना हाई हो गया है।
वो तो अनम को रिश्ता लेने आई थी मेरे लिए। शाकिर उसे कहता है कि अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम ना लो, मैं तुम जैसे लोगों को अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। तो नवीद शाकिर को कहता है कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। शाकिर उसे कहता है कि जाओ जाओ निकलो यहाँ से। नवीद भी चला जाता है। नवीद जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ कहती है शाकिर को एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। नवीद की माँ शगुफ्ता जब उनसे कोई गरीब पैसे लेना आता जरूरतमंद तो उसे पैसे तो दे देती लेकिन उस पर सूद लगा देती, लेकिन उन गरीबों को पता ना होता। रात होती तो नवीद की माँ शगुफ्ता डरती। हर रात वो एक डरावना ख्वाब देखती जिससे वो बहुत डर जाती थी। उसका बेटा नवीद आ जाता था। अनम की दोस्त अंबर जो कि एक लड़के से मोहब्बत करती थी और बार बार अनम के पास आ जाती थी, मुझे उस लड़के से मिला दो, सिर्फ तुम ये काम कर सकती हो क्योंकि मेरे माँ बाप तुम पर भरोसा करते हैं। अनम उसे कहती कि ये मैं नहीं कर सकती। वो हर जगह अनम के पीछे आ जाती, उनके घर आ जाती और यूनिवर्सिटी में भी उसका पीछा करती। यूनिवर्सिटी में भी बार बार उसके पास चली जाती और उसे ये कहती। जब अनम की दोस्त नेहा का सालगिरह होता है तो सब दोस्तों ने उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लिए, लेकिन अनम भी एक महंगा तोहफा उसके लिए लेना चाहती थी। जब उसके बाप को तनख्वाह मिली तो उसकी माँ पैसे उठाई बैठी होती है। अनम जैसे यूनिवर्सिटी से आती है देखती है कि उसकी माँ ने पैसे उठाए हुए हैं तो वो अपनी माँ से पैसे खींच लेती है और कहती है कि मेरी दोस्त के बर्थडे है उसके लिए मैं कुछ लूँगी। तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि मैं अभी से ले आती हूँ और अपनी बहन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत कि अमीर दोस्तों से दोस्ती लगाई बैठी हो, अम्मी अब्बू बहुत परेशान है, ये पैसे मुझे दे दो। तो अनम नहीं देती तो वो खींच कर ले आती है। अनम नाराज़ हो जाती है, कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा देती है। उसका बाप बहुत ही परेशान हो जाता है, रोने लगता है। तो फिर अनम के पास जाता है, उसे कहता है दरवाज़ा खोलो। तो अनम नहीं खोलती, कहता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब भी खाना नहीं खाऊंगा। तो अनम दरवाज़ा खोल देती है। तो उसका बाप कहता है कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम करता हूं, मैं किसी से उधार मांग लूँगा। अनम का बाप दूसरे रोज़ ऑफिस में जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे 5-6 हज़ार ज़रूरत है, मैं आपको वापस कर दूँगा। मुझे मांगते हुए शर्म तो बहुत आ रही है क्योंकि आपको भी कल तनख्वाह मिले और मुझे भी। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आजकल ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और तनख्वाह पूरी नहीं होती। तो उसका दोस्त उसे पैसे दे देता है। जब अनम बैलेंस करवाने के लिए शॉप में जाती है तो फराज भी वहाँ ठहरा होता है। अनम दुकानदार को कहती है एक कार्ड दे दो। तो वो कहता है कि कार्ड तो नहीं है लेकिन बैलेंस है। अनम कहती है कि चलो ठीक है, वो अपना नंबर बताने लग जाती है। फराज भी साथ ठहरा होता है और उस अनम का नंबर नोट कर रहा होता है। अनम उसे देख लेती है, उसे कहती है कि तुम मेरा नंबर नोट कर रहे हो। फराज कहता है कि नहीं देख लो, मैं किसी दोस्त को मैसेज कर रहा था। और फिर अनम चली जाती है, बाहर ठहर जाती है और रक्शे वाले को कहती है कि जाना है। तो वो कहता है कि 1000 रुपये लूँगा। फराज भी पीछे से आ रहा होता है तो उसे कहता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप लेट हो रही होंगी। वो कहती है कि हरगिज़ नहीं। अनम को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? अनम की ताई अम्मी जो कि नवीद की माँ है, अगर उसके पास कोई ज़रूरतमंद आ जाता पैसों के लिए तो उनको पैसे सूद पर देती। इसी तरह एक औरत ने अपने जेवरात शगुफ्ता को दिए। शगुफ्ता ने पैसे तो दे दिए और जेवरात अपने पास रख लिए। औरत आती है अपने जेवरात लेने, शगुफ्ता से नहीं देती, उसे सूद पर पैसे लेती है। क्या शाकिर अनम की नवीद से शादी कराएगा? अनम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अनम एक गरीब घर की लड़की है और उसकी दोस्तें अमीर बाप की बेटियां हैं। तो अनम ने उसे झूठ बोला हुआ है कि मेरा बाप भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे पास भी गाड़ियां हैं। लेकिन अनम की दोस्तों को पता नहीं कि ये गरीब लड़की है। जब अनम की बर्थडे थी तो उनकी दोस्तों ने खूब इंजॉयमेंट के साथ उसकी सालगिरह सेलिब्रेट की और अनम को महंगे महंगे तोहफे तोहफे दिए, जिस पर अनम बहुत खुश थी। अनम का बाप शाकिर एक छोटी मोटी जॉब करता है और उसकी माँ घर में कपड़े सिलाई करती है, जिससे उनके घर का मुश्किल से गुजारा होता था। अनम की बहन माम ने अपनी माँ को कहा कि आज अनम आपी का सालगिरह है, उसके लिए केक बनाते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि छोड़ो फजूल खर्चियाँ, लेकिन उसकी बहन कहती है कि नहीं, किस बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसकी बहन केक वगैरह ले आती है। अनम यूनिवर्सिटी से घर आती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे तोहफे तोहफे दिए। जब उसकी बहन कहती है कि कपड़े चेंज करके आ जाओ, हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो कहती है कि मैंने तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली अपने दोस्तों के साथ। उसकी बहन कहती है कि हमने आपके लिए भी केक बनाया हुआ है। तो अनम कहती है कि छोटे के कोई बर्थडे सेलिब्रेट होती है तो उसकी बहन अनम को मना लेती है और फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस ड्रामे में हीरो फराज जो कि गांव में रहता है, जॉब के लिए शहर आ जाता है। वो भी अनम के मोहल्ले में किराए का घर ले लेता है, जबकि उसकी माँ गांव में रहती है। जब अनम यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है और फराज भी वहाँ से आ रहा होता है तो अनम फराज की बाइक
पर जा लगती है। इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है, उससे लड़ने लगती है। फराज कहता है कि कसूर आपकी है, आप देख कर चलें, लेकिन वो कहती है कि कसूर आपकी है। इस बात पर इस दोनों की बहस हो जाती है। तो फिर उधर से नवीद आ जाता है, जो कि अनम का कज़न है। पहले तो वो बहुत हीरो के स्टाइल में आता है और फराज को कहता है कि क्यों क्यों छेड़ रहे हो लड़कियों को। तो फराज कहता है कि ओ भाई, पहले बात की तहकीक कर लो। तो अनम नवीद को कहती है कि तुम कहाँ आ गए, अपने काम से काम रखो। नवीद अनम का कज़न होता है और अनम से मोहब्बत करता है। नवीद की माँ शाकिर के घर आती है अनम का रिश्ता लेने। जैसे ही शाकिर उसे देखता है, उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। वो बहुत ही प्यार से बात करती है, लेकिन शाकिर गुस्सा आ जाता है और फिर उसको कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। फिर नवीद की माँ जो गुफ्तगू चली जाती है। जब घर जाती है तो अपने बेटे को बुलाती है और उसे कहती है कि शाकिर मुझे बहुत बातें सुनाई, और उसका बीपी हाई हो जाता है। नवीद अपने चाचा घर आता है, उसे कहता है कि मेरी माँ के साथ तुमने क्या किया कि उसका बीपी इतना हाई हो गया है। वो तो अनम को रिश्ता लेने आई थी मेरे लिए। शाकिर उसे कहता है कि अपनी गंदी ज़बान से मेरी बेटी का नाम ना लो, मैं तुम जैसे लोगों को अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। तो नवीद शाकिर को कहता है कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। शाकिर उसे कहता है कि जाओ जाओ निकलो यहाँ से। नवीद भी चला जाता है। नवीद जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ कहती है शाकिर को एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। नवीद की माँ शगुफ्ता जब उनसे कोई गरीब पैसे लेना आता ज़रूरतमंद तो उसे पैसे तो दे देती, लेकिन उस पर सूद लगा देती, लेकिन उन गरीबों को पता ना होता। रात होती तो नवीद की माँ शगुफ्ता डरती। हर रात वो एक डरावना ख्वाब देखती जिससे वो बहुत डर जाती थी। उसका बेटा नवीद आ जाता था। अनम की दोस्त अंबर जो कि एक लड़के से मोहब्बत करती थी और बार बार अनम के पास आ जाती थी, मुझे उस लड़के से मिला दो, सिर्फ तुम ये काम कर सकती हो क्योंकि मेरे माँ बाप तुम पर भरोसा करते हैं। अनम उसे कहती कि ये मैं नहीं कर सकती। वो हर जगह अनम के पीछे आ जाती, उनके घर आ जाती और यूनिवर्सिटी में भी उसका पीछा करती। यूनिवर्सिटी में भी बार बार उसके पास चली जाती और उसे ये कहती। जब अनम की दोस्त नेहा का सालगिरह होता है तो सब दोस्तों ने उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लिए, लेकिन अनम भी एक महंगा तोहफा उसके लिए लेना चाहती थी। जब उसके बाप को तनख्वाह मिली तो उसकी माँ पैसे उठाई बैठी होती है। अनम जैसे यूनिवर्सिटी से आती है देखती है कि उसकी माँ ने पैसे उठाए हुए हैं, तो वो अपनी माँ से पैसे खींच लेती है और कहती है कि मेरी दोस्त के बर्थडे है, उसके लिए मैं कुछ लूँगी। तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि मैं अभी से ले आती हूँ, और अपनी बहन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत कि अमीर दोस्तों से दोस्ती लगाई बैठी हो, अम्मी अब्बू बहुत परेशान है, ये पैसे मुझे दे दो। तो अनम नहीं देती तो वो खींच कर ले आती है। अनम नाराज़ हो जाती है, कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा देती है। उसका बाप बहुत ही परेशान हो जाता है, रोने लगता है और फिर अनम के पास जाता है, उसे कहता है दरवाज़ा खोलो। तो अनम नहीं खोलती, कहता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब भी खाना नहीं खाऊंगा। तो अनम दरवाज़ा खोल देती है। तो उसका बाप कहता है कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम करता हूं, मैं किसी से उधार मांग लूँगा। अनम का बाप दूसरे रोज़ ऑफिस में जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे 5-6 हज़ार ज़रूरत है, मैं आपको वापस कर दूँगा। मुझे मांगते हुए शर्म तो बहुत आ रही है क्योंकि आपको भी कल तनख्वाह मिले और मुझे भी। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आजकल ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और तनख्वाह पूरी नहीं होती। तो उसका दोस्त उसे पैसे दे देता है। जब अनम बैलेंस करवाने के लिए शॉप में जाती है तो फराज भी वहाँ ठहरा होता है। अनम दुकानदार को कहती है एक कार्ड दे दो, तो वो कहता है कि कार्ड तो नहीं है लेकिन बैलेंस है। अनम कहती है कि चलो ठीक है, हम अपना नंबर बताने लग जाती है। फराज भी साथ ठहरा होता है और उस अनम का नंबर नोट कर रहा होता है। अनम उसे देख लेती है और उसे कहती है कि तुम मेरा नंबर नोट कर रहे हो। फराज कहता है कि नहीं देख लो, मैं किसी दोस्त को मैसेज कर रहा था। और फिर अनम चली जाती है, बाहर ठहर जाती है और रक्शे वाले को कहती है कि जाना है। तो वो कहता है कि 1000 रुपया लूँगा। फराज भी पीछे से आ रहा होता है तो उसे कहता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप लेट हो रही होंगी। वो कहती है कि हरगिज़ नहीं। अनम को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? अनम की ताई अम्मी जो कि नवीद की माँ है, अगर उसके पास कोई ज़रूरतमंद आ जाता पैसों के लिए तो उनको पैसे सूद कर देती। इसी तरह एक औरत ने अपने ज़ेवरात शगुफ्ता को दिए। शगुफ्ता ने पैसे तो दे दिए और ज़ेवरात अपने पास रख लिए। औरत आती है अपने ज़ेवरात लेने, शगुफ्ता से नहीं देती, उसे सूद पर पैसे लेती है। क्या शाकिर अनम की नवीद की शादी कराएगा? अनम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अनम एक गरीब घर की लड़की है और उसकी दोस्तें अमीर बाप की बेटियां हैं। तो अनम ने उसे झूठ बोला हुआ है कि मेरा बाप भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे पास भी गाड़ियां हैं।
लेकिन अनम के दोस्तों को पता नहीं कि ये गरीब लड़की है। जब अनम की बर्थडे थी तो उनकी दोस्तों ने खूब इंजॉयमेंट के साथ उसकी सालगिरह सेलिब्रेट की और अनम को महंगे महंगे तोहफे तहफ़ दिए, जिस पर अनम बहुत खुश थी। अनम का बाप शाकिर एक छोटी मोटी जॉब करता है और उसकी माँ घर में कपड़े सिलाई करती है, जिससे उनके घर का मुश्किल से गुजारा होता था। अनम की बहन माम ने अपनी माँ को कहा कि आज अनम आपी का सालगिरह है, उसके लिए केक बनाते हैं। उसकी माँ कहती है कि छोड़ो फूल खर्चियाँ, लेकिन उसकी बहन कहती है कि नहीं कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसकी बहन केक वगैरह ले आती है। अनम यूनिवर्सिटी से घर आती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे तोहफे तहफ़ दिए। जब उसकी बहन कहती है कि कपड़े चेंज करके आ जाओ, हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कहती है कि मैंने तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली अपने दोस्तों के साथ। उसकी बहन कहती है कि हमने आपके लिए भी केक बनाया हुआ है। तो अनम कहती है कि छोटे केक पे कोई बर्थडे सेलिब्रेट होती है, तो उसकी बहन अनम को मना लेती है और फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस ड्रामे में हीरो फराज, जो कि गांव में रहता है, जॉब के लिए शहर आ जाता है। वो भी अनम के मोहल्ले में किराए का घर ले लेता है, जबकि उसकी माँ गांव में रहती है। जब अनम यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है और फराज भी वहाँ से आ रहा होता है, तो अनम फराज की बाइक पर जा लगती है। इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने लगती है। फराज कहता है कि कसूर आपकी है, आप देख कर चलें, लेकिन वो कहती है कि कसूर आपकी है। इस बात पर इस दोनों की बहस हो जाती है। तो फिर उधर से नवीद आ जाता है, जो कि अनम का कज़न है। पहले तो वो बहुत हीरो के स्टाइल में आता है और फराज को कहता है कि क्यों छेड़ रहे हो लड़कियों को। तो फराज कहता है कि ओ भाई, पहले बात की तहकीक कर लो। तो अनम नवीद को कहती है कि तुम कहाँ आ गए, अपने काम से काम रखो। नवीद अनम का कज़न होता है और अनम से मोहब्बत करता है। नवीद की माँ शाकिर के घर आती है अनम का रिश्ता लेने। जैसे ही शाकिर उसे देखता है, उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। वो बहुत ही प्यार से बात करती है, लेकिन शाकिर गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। फिर नवीद की माँ जब गुफ्ता चली जाती है, जब घर जाती है तो अपने बेटे को बुलाती है और उसे कहती है कि शाकिर मुझे बहुत बातें सुनाई, और उसका बीपी हाई हो जाता है। नवीद अपने चाचा घर आता है, उसे कहता है कि मेरी माँ के साथ तुमने क्या किया कि उसका बीपी इतना हाई हो गया है। वो तो अनम का रिश्ता लेने आई थी मेरे लिए। शाकिर उसे कहता है कि अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बेटी का नाम ना लो, मैं तुम जैसे लोगों को अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। तो नवीद शाकिर को कहता है कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। शाकिर उसे कहता है कि जाओ जाओ निकलो यहाँ से। नवीद भी चला जाता है। नवीद जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ कहती है शाकिर को एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। नवीद की माँ शगुफ्ता जब उनसे कोई गरीब पैसे लेना आता जरूरतमंद, तो उसे पैसे तो दे देती, लेकिन उस पर सूद लगा देती, लेकिन उन गरीबों को पता ना होता। रात होती तो नवीद की माँ शगुफ्ता डरती। हर रात वो एक डरावना ख्वाब देखती, जिससे वो बहुत डर जाती थी। उसका बेटा नवीद आ जाता था। अनम की दोस्त अंबर, जो कि एक लड़के से मोहब्बत करती थी और बार बार अनम के पास आ जाती थी, मुझे उस लड़के से मिला दो, फिर तुम ये काम कर सकती हो, क्योंकि मेरे माँ बाप तुम पर भरोसा करते हैं। अनम उसे कहती कि ये मैं नहीं कर सकती। वो हर जगह अनम के पीछे आ जाती, उनके घर आ जाती और यूनिवर्सिटी में भी उसका पीछा करती। यूनिवर्सिटी में भी बार बार उसके पास चली जाती और उससे ये कहती। जब अनम की दोस्त नेहा का सालगिरह होता है तो सब दोस्तों ने उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लिए, लेकिन अनम भी एक महंगा तोहफा उसके लिए लेना चाहती थी। जब उसके बाप को तनख्वाह मिली तो उसकी माँ पैसे उठाई बैठी होती है। अनम जैसे यूनिवर्सिटी से आती है, देखती है कि उसकी माँ ने पैसे उठाए हुए हैं, तो वो अपनी माँ से पैसे खींच लेती है और कहती है कि मेरी दोस्त के बर्थडे है, उसके लिए मैं कुछ लूँगी। तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि मैं आप इसे ले आती हूँ, और अपनी बहन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत कि अमीर दोस्तों से दोस्ती लगाई बैठी हो, अम्मी अब्बू बहुत परेशान है, ये पैसे मुझे दे दो। तो अनम नहीं देती, तो वो खींच कर ले आती है। अनम नाराज़ हो जाती है, कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा देती है। उसका बाप बहुत ही परेशान हो जाता है, रोने लगता है और फिर अनम के पास जाता है, उसे कहता है दरवाज़ा खोलो। तो अनम नहीं खोलती, कहता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब भी खाना नहीं खाऊंगा। तो अनम दरवाज़ा खोल देती है। तो उसका बाप कहता है कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम करता हूं, मैं किसी से उधार मांग लूँगा। अनम का बाप दूसरे रोज़ ऑफिस में जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे 5-6 हज़ार ज़रूरत है, मैं आपको वापस कर दूँगा। मुझे मांगते हुए शर्म तो बहुत आ रही है, क्योंकि आपको भी कल तनख्वाह मिले और मुझे भी। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आजकल ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और तनख्वाह पूरी नहीं होती। तो उसका दोस्त उसे पैसे दे देता है। जब अनम बैलेंस करवाने के लिए शॉप में जाती है तो फराज भी वहाँ ठहरा होता है। अनम दुकानदार को कहती है एक कार्ड दे दो, तो
वो कहता है कि कार्ड तो नहीं है लेकिन बैलेंस है। अनम कहती है कि चलो ठीक है। अनम अपना नंबर बताने लग जाती है। फराज भी साथ ठहरा होता है और उस अनम का नंबर नोट कर रहा होता है। अनम उसे देख लेती है और उसे कहती है कि तुम मेरा नंबर नोट कर रहे हो। फराज कहता है कि नहीं, देख लो, मैं किसी दोस्त को मैसेज कर रहा था। और फिर अनम चली जाती है, बाहर ठहर जाती है और रक्शे वाले को कहती है कि जाना है। तो वो कहता है कि 1000 रुपये लूँगा। फराज भी पीछे से आ रहा होता है तो उसे कहता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप लेट हो रही होंगी। वो कहती है कि हरगिज़ नहीं। अनम को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? अनम की ताई अम्मी जो कि नवीद की माँ है, अगर उसके पास कोई ज़रूरतमंद आ जाता पैसों के लिए तो उनको पैसे सूद पर देती। इसी तरह एक औरत ने अपने जेवरात शगुफ्ता को दिए। शगुफ्ता ने पैसे तो दे दिए और जेवरात अपने पास रख लिए। औरत आती है अपने जेवरात लेने, शगुफ्ता से नहीं देती, उसे सूद पर पैसे लेती है। क्या शाकिर अनम की नवीद से शादी कराएगा? अनम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अनम एक गरीब घर की लड़की है और उसकी दोस्तें अमीर बाप की बेटियां हैं। तो अनम ने उनसे झूठ बोला हुआ है कि मेरा बाप भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे पास भी गाड़ियां हैं। लेकिन अनम की दोस्तों को पता नहीं कि ये गरीब लड़की है। जब अनम की बर्थडे थी तो उनकी दोस्तों ने खूब इंजॉयमेंट के साथ उसकी सालगिरह सेलिब्रेट की और अनम को महंगे महंगे तोहफे तहफ दिए, जिस पर अनम बहुत खुश थी। अनम का बाप शाकिर एक छोटी मोटी जॉब करता है और उसकी माँ घर में कपड़े सिलाई करती है, जिससे उनके घर का मुश्किल से गुजारा होता था। अनम की बहन माम ने अपनी माँ को कहा कि आज अनम आपी का सालगिरह है, उसके लिए केक बनाते हैं। उसकी माँ कहती है कि छोड़ो फजूल खर्चियाँ, लेकिन उसकी बहन कहती है कि नहीं, किस बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसकी बहन केक वगैरह ले आती है। अनम यूनिवर्सिटी से घर आती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे तोहफे तहफ दिए। जब उसकी बहन कहती है कि कपड़े चेंज करके आ जाओ, हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो कहती है कि मैंने तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली अपने दोस्तों के साथ। उसकी बहन कहती है कि हमने आपके लिए भी केक बनाया हुआ है। तो अनम कहती है कि छोटे के कोई बर्थडे सेलिब्रेट होती है तो उसकी बहन अनम को मना लेती है और फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस ड्रामे में हीरो फराज जो कि गांव में रहता है, जॉब के लिए शहर आ जाता है। वो भी अनम के मोहल्ले में किराए का घर ले लेता है, जबकि उसकी माँ गांव में रहती है। जब अनम यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है और फराज भी वहाँ से आ रहा होता है तो अनम फराज की बाइक पर जा लगती है। इस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है, उससे लड़ने लगती है। फराज कहता है कि कसूर आपकी है, आप देख कर चलें, लेकिन वो कहती है कि कसूर आपकी है। इस बात पर इस दोनों की बहस हो जाती है। तो फिर उधर से नवीद आ जाता है जो कि अनम का कज़न है। पहले तो वो बहुत हीरो के स्टाइल में आता है और फराज को कहता है कि क्यों छेड़ रहे हो लड़कियों को। तो फराज कहता है कि ओ भाई, पहले बात की तहकीक कर लो। तो अनम नवीद को कहती है कि तुम कहाँ आ गए, अपने काम से काम रखो। नवीद अनम का कज़न होता है और अनम से मोहब्बत करता है। नवीद की माँ शाकिर के घर आती है अनम का रिश्ता लेने। जैसे ही शाकिर उसे देखता है उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। वो बहुत ही प्यार से बात करती है, लेकिन शाकिर गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। फिर नवीद की माँ जो गुफ्ता चली जाती है। जब घर जाती है तो अपने बेटे को बुलाती है और उसे कहती है कि शाकिर मुझे बहुत बातें सुनाई, और उसका बीपी हाई हो जाता है। नवीद अपने चाचा घर आता है, उसे कहता है कि मेरी माँ के साथ तुमने क्या किया कि उसका बीपी इतना हाई हो गया है, वो तो अनम के रिश्ते लेने आई थी मेरे लिए। शाकिर उसे कहता है कि अपनी गंदी ज़बान से मेरी बेटी का नाम ना लो, मैं तुम जैसे लोगों को अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। तो नवीद शाकिर को कहता है कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। शाकिर उसे कहता है कि जाओ जाओ निकलो यहाँ से। नवीद भी चला जाता है। नवीद जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ कहती है शाकिर को एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। नवीद की माँ शगुफ्ता जब उनसे कोई गरीब पैसे लेना आता ज़रूरतमंद तो उसे पैसे तो दे देती, लेकिन उस पर सूद लगा देती, लेकिन उन गरीबों को पता ना होता। रात होती तो नवीद की माँ शगुफ्ता डरती। हर रात वो एक डरावना ख्वाब देखती जिससे वो बहुत डर जाती थी। उसका बेटा नवीद आ जाता था। अनम की दोस्त अंबर जो कि एक लड़के से मोहब्बत करती थी और बार बार अनम के पास आ जाती थी, मुझे उस लड़के से मिला दो, सिर्फ तुम ये काम कर सकती हो क्योंकि मेरे माँ बाप तुम पर भरोसा करते हैं। अनम उसे कहती कि ये मैं नहीं कर सकती। वो हर जगह अनम के पीछे आ जाती, उनके घर आ जाती और यूनिवर्सिटी में भी उसका पीछा करती। यूनिवर्सिटी में भी बार बार उसके पास चली जाती और उसे ये कहती। जब अनम की दोस्त नेहा का सालगिरह होता है तो सब दोस्तों ने उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लिए, लेकिन अनम भी एक महंगा तोहफा उसके लिए लेना चाहती थी। जब उसके बाप को तनख्वाह मिली तो उसकी माँ पैसे उठाई बैठी होती है। अनम जैसे यूनिवर्सिटी से आती है देखती है कि उसकी माँ ने पैसे उठाए हुए हैं, तो वो अपनी माँ से पैसे खींच लेती है और कहती है कि मेरी दोस्त के बर्थडे है, उसके लिए मैं कुछ लूँगी। तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि मैं अभी से ले आती हूँ।
और अपनी बहन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत कि अमीर दोस्तों से दोस्ती लगाई बैठी हो, अम्मी अब्बू बहुत परेशान है, ये पैसे मुझे दे दो। तो अनम नहीं देती तो वो खींच कर ले आती है। अनम नाराज़ हो जाती है, कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा देती है। उसका बाप बहुत ही परेशान हो जाता है, रोने लगता है और फिर अनम के पास जाता है, उसे कहता है दरवाज़ा खोलो। तो अनम नहीं खोलती, कहता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब भी खाना नहीं खाऊंगा। तो अनम दरवाज़ा खोल देती है। तो उसका बाप कहता है कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम करता हूं, मैं किसी से उधार मांग लूँगा। अनम का बाप दूसरे रोज़ ऑफिस में जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे 5-6 हज़ार ज़रूरत है, मैं आपको वापस कर दूँगा। मुझे मांगते हुए शर्म तो बहुत आ रही है क्योंकि आपको भी कल तनख्वाह मिले और मुझे भी। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आजकल ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और तनख्वाह पूरी नहीं होती। उसका दोस्त उसे पैसे दे देता है। जब अनम बैलेंस करवाने के लिए एक शॉप में जाती है तो फराज भी वहाँ ठहरा होता है। अनम दुकानदार को कहती है एक कार्ड दे दो। तो वो कहता है कि कार्ड तो नहीं है लेकिन बैलेंस है। अनम कहती है कि चलो ठीक है। हम अपना नंबर बताने लग जाती है। फराज भी साथ ठहरा होता है और उस अनम का नंबर नोट कर रहा होता है। अनम उसे देख लेती है और उसे कहती है कि तुम मेरा नंबर नोट कर रहे हो। फराज कहता है कि नहीं, देख लो, मैं किसी दोस्त को मैसेज कर रहा था। और फिर अनम चली जाती है, बाहर ठहर जाती है और रिक्शे वाले को कहती है कि जाना है। तो वो कहता है कि 1000 रुपये लूँगा। फराज भी पीछे से आ रहा होता है तो उसे कहता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप लेट हो रही होंगी। वो कहती है कि हरगिज़ नहीं,